I'll just add Payal too. Meanwhile, Kanchan, aap bolo. So basically, see, yes, everybody rightly said it starts with you. However, I really feel that every relationship that comes into your life, every relationship, right from your mother, your father, your husband, your wife, every relationship is a teacher. Our relationships are our biggest teachers, and our greatest learnings actually come from our relationships, because it is not outside of the house or outside of your personal inner circle that you have problems. It is always inside. It is always with your parents. It is always with your husband, your wife, your boyfriend, your girlfriend, your brother, your sister. It is always inside the circle. Now, the more closer somebody is to you, the bigger the lesson and harder the lesson. So relationship for me, it took me a lot of time to really understand this and to get to a point that, you know what? Yes, there is like a difference between attachment, getting too attached, and being in a space of detachment where you love, but you are at least detached so much so that you allow the other people to do what they want. As Preeti rightly you mentioned, कि हमारी conditioning बहुत ज़्यादा strong है, especially in terms to the Indian culture. It's very strong. We are always taught about give. Asking is selfish. Don't ask. देना सीखो. जितना दोगे उतना ज्यादा अच्छा है. जितना मांगोगे लोग क्या अरे एक तो सबसे पहले ये लोग क्या कहेंगे, मतलब मुझे कोई बचाओ इससे. ये लोग क्या कहेंगे से मुझे इतनी नफरत हो चुकी है ना. I'm like I am going to kill people who start that thing in front of me. कह रहे लोग क्या बोलेंगे. That is one of the most. These are a few things which have actually put us or have separated us from our own self-love. So as we become more aware of these things, we should actually start putting these ideals, these thoughts in our children, that it is okay to ask, it's okay to cry, it's okay to be not okay, it is okay to feel bad, grieve, be sad. No, you don't have to be strong. When I lost my father, everybody was like, be strong, be strong. Hello, I lost my father, how can I be strong? We as a society really need to change, but that comes later. जो हमारे primary relationships है, I feel they teach us a lot, and our learning basically comes from our primary relationship. So every time you have a problem in your relationships, always ask this question: what is it that I need to learn from this person or from this relationship? That's when a lot of clarity will come in. Many people will not agree with what I have to say because it is a difficult thing. But this is the truth. Sooner or later, everybody will come to this. So, relationships are your teachers. That's it. So, yeah, because majority of the times, relationship problems, husband, wife, boyfriend, girlfriend, यही ज़्यादा cases आते हैं. So, I'll share हाँ, तो 2-3 ऐसे कॉमन रेमेडीज हैं जो आप मेजरली हस्बैंड वाइफ के लिए यूज कर सकते हैं, बट जरूरत पड़ी तो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. As it goes, I'm going to share some tantric upays, remedies. The first one is to go on a Friday. ये ध्यान से सुन लो, आप लोग लिख लो अगर ऐसा है तो, because it is important. So on a Friday you will go to a people tree. पीपल के झाड़ पे जाना है, 7 पत्ते तोड़ने हैं पीपल के, और उसके ऊपर सिंदूर से उस इंसान का नाम लिखना है जिसके साथ आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है या जिससे आपको कोई काम निकलवाना है. ये उपाय उसके लिए भी काम आता है. ठीक है. सो 7 पत्ते लेंगे, 7 पत्तों पे सिंदूर से नाम लिखेंगे और ये फ्राइडे को करना है सुबह. अब इन 7 पत्तों को आपको मौली आती है ना रेड कलर की, जो हम हाथों में पहनते हैं, मौली कलावा, उससे आपको बांध देना है और इसको अपने पास रखना है दिन भर. रात को जब सूरज ढल जाए उसी पेड़ के पास वापस जाइए, थोड़ा सा मिट्टी हटा के, जैसे छोटा सा खड्डा आपने किया, उसमें ये पत्ते दबाने हैं, मिट्टी ऊपर से डाल देनी है और कच्चा दूध चढ़ाना है वहां पे. वो जो आपने जैसे खड्डा भर दिया वहां पे थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाइए और
पीपल के पेड़ पे ये प्रे करना है कि हे वृक्षराज, इस इंसान का और मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, या फिर ये इंसान मेरा काम कर दे। जो भी आपका जो भी काम है वो आप इस तरीके से प्रे करेंगे। या एक बार करें, अगर आपको लगता है कि काम नहीं कर रहा है तो 5 बार भी कर सकते हैं, 5 फ्राइडे को भी कर सकते हैं। जनरली एक ही बार किया जाता है, एक बार में हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक जनरल रेमेडी फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। नाउ मुझे बहुत क्लाइंट्स ने मेरे पूछा है माँ बेटे के रिलेशनशिप के बारे में, स्पेशली योर किड्स। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे तो रात में जब वो सो जाते हैं, थोड़े से उनके बाल काट लो, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं। और ये सब सात्विक चीजें, ओके। पीपल विल थिंक यार बाल वाल कटा के ये लड़की चला रही है, ये क्या करवा रही है। तो ये बहुत ही साफ सुथरे क्लीन तरीके हैं जो एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है। ये स्पेसिफिकली मदर चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए है, ये कोई और नहीं कर सकता है, ओके। सो अगर आपके बच्चे, कोई भी एज का बच्चा हो, महीने जितना बड़ा बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो, that does not matter. If you feel that you want your child to listen to you or become like you want them to be, now see guys, don't use this for, जैसे गायत्री ने बोला, अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ये सब मत यूज करना, बैकफायर करेगा, ओके। इफ यू जेन्युइनली नो दैट योर चिल्ड्रन आर इन बैड कंपनी, किसी बुरे दोस्तों की संगत में है, कोई लत लग गई है, if they are into drugs or anything of that sort, then use this. Now if they are not listening to you because you are wrong and they are right and still you want to do it, it is going to backfire big time. ये भी मैं अभी बता दे रही हूँ। तो उस सिचुएशन में ये काम नहीं करना, ठीक है। सो रात को थोड़े से बाल लेने हैं अपने बच्चे के, और ये जनरली उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उनको ये उपाय बताया जाता है। तो थोड़े से बाल लेके चौखट पे जाएंगे दरवाजे की। ये आप सनसेट के वक्त भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, सनसेट के बाद बेसिकली। तो उन पेपर में वो बाल डाल दो, और घर की जो चौखट होती है, चौखट, उधर वो पेपर रखो और जला दो। पेपर जलाओगे तो बाल भी अपने आप जल जाएंगे उसके साथ, है ना। तो जब वो राख हो जाता है ना, वहीं पे अपने लेफ्ट पैर की जो हील है, लेफ्ट पैर की जो एड़ी होती है ना, एड़ी हील, उससे यू विल क्रश द राख एंड दैट्स इट। जो बाकी की ऐश है वो आप घर के बाहर फेंक दो, उड़ा दो, झाड़ू मार दो, घर के अंदर मत लाओ, बाहर फेंक दो। बट उसको पैर से, एड़ी से क्रश करना बहुत जरूरी है, ताकि वो जो भी गलत संगत है या जो भी दिस इज बेसिकली टू रिमूव ऑल द अनवांटेड एनर्जी फ्रॉम योर चाइल्ड। जो भी नशे की किसी को लत लग जाती है, सिगरेट स्मोकिंग, व्हाटएवर, सो ओनली मदर्स कैन यूज दिस। Third thing is basically a simple tip using crystal, and that is garnet. What you have to do is all you need a garnet in any form, raw, cabochon, कुछ भी आपको उसको अपने थर्ड आई पे लगाना है। आग बंद करके 2 मिनट अपनी एनर्जी उसमें डालनी है, और फिर यही गार्नेट आपको जिस इंसान, ये अगर आप कर सको तो करो, because the other person who you want to enhance your relationship with, you will place the garnet on their third eye also. If you can't place it on their third eye, if you don't want them to know, just keep a garnet, close your eyes, put your energy, set your intention, और ये जाके अपने उस इंसान के बेड के नीचे, जहाँ पे उनका रूट चक्र होता है, उस एरिया में मैट्रेस के नीचे आप रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गए 3। एक और है, there's one more thing which is coming to me, which I will share. This is particularly for husband-wife relationships. Now, when you know that your husband is not treating you or your wife is not treating you, this is especially for women, तो आपको क्या करना है, फ्राइडे को सिंदूर, फ्राइडे रात को सिंदूर आप लोगे, थोड़ा सा लाल वाला, वो आप एक पूड़ी बना लोगे, एक छोटे से पेपर में डाल के, बस थोड़ा सा, लाइक इतना सा सिंदूर लेना है, दिस टाइनी बिट। उसका एक छोटी सी पुड़िया बना के अपने हस्बैंड के पिलो के कवर के अंदर डाल दो। He should not know about it, okay? कपूर लेना है, 2 टिकिया कपूर आती है ना, वो भीमसेनी लो, कोई भी लो, उसको भी अपने पिलो के कवर के नीचे डालो। ये फ्राइडे को करना है, ठीक है। सिंदूर की पुड़िया जाएगी हस्बैंड के कवर के नीचे, कपूर जाएगा आपके कवर के नीचे। नेक्स्ट डे जब आप रात में सोओगे दोनों उसी पिलो पे, अपने रिस्पेक्टिव पिलो पे, जब आप दूसरे दिन उठोगे, once your husband is out of the scene, take the सिंदूर, थोड़ा सा बेड पे छिड़को, थोड़ा सा घर में छिड़को, और थोड़ा सा लगा लो, और जो कपूर है उसको जला दो। Now this has to be done. If you don't see a result in the first Friday, do this at least for 5 Fridays, and trust me, these things will really change. 2-3 और आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत नेक्स्ट लेवल उपाय है सात्विक ही, लेकिन बहुत अलग लगेंगे, तो वो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। अभी इस पे रुक जाते हैं। ये 2-3